Hello everyone, welcome you all. In this video lecture we are going to start our the first chapter as per the TK and VKOA book, that is chapter number 4, methods to calculate national income. Okay, so before this video we have studied a very important chapter, that is national income and its related aggregates. Okay, that is also a very important chapter for you all because after understanding that chapter 3, that is national income and related aggregates, you can understand this chapter only. Okay, that means that chapter is important. That means you should know that what is the GDP, what is the NNP, and how it is calculated. So after that you can or we can easily understand the concepts of this chapter, that is the methods of calculating national income. Okay, so as you can see here, this chapter is all about the methods, the ways to calculate the national income. Okay, so the first thing is that you have to keep in your mind that there is only 3 methods to calculate the national income. Okay, so basically in this video lecture we are going to discuss about the different methods of calculating national income. I will cover here only one method, that is value added method. Okay, so first of all I'm just giving a brief intro to you that how the national income is calculated. So go through this video till the last second of this video. Okay, so then only you are able to connect yourself with the chapter, that how national income is calculated. Believe me, this is a very interesting chapter, and you have to connect yourself first with this chapter, because once you are able to understand the concepts of this chapter, this is a very easy chapter, because in your board exam 6 marks question is always asked from this chapter. Okay, either you have to find out the national income with the help of the 3 formulas, or you have to write the precautions which has to be taken at the time of calculation of national income. Okay, so we are going to start this chapter, that is the methods to calculate national income. So basically there are 3 methods to calculate. Whenever we are talking about the methods of calculating national income, so there are 3 methods. Okay, one by one we will deal to it. So first of all, just a brief intro that what are these 3 methods are all about. So as you can see here that I am putting an arrow. So so there are 3 arrows required to make you understand. Okay, but as I am saying that if you have not covered my previous lecture of chapter 3, I request you go and study that lecture, go and see that lecture, and after seeing that lecture please come to this chapter 4 lecture. Okay, so the first method is that what is value added method. The first method to calculate is the value added method. And what is the value added method? So in the value added method, you can say that in this method we add or sum up the value addition. Sum up the value addition by each sector of an economy. Okay, by adding up or by summing up the value addition by each sector of an economy, we can get the national income by value added method. Okay, and this value added method is also known as by one more name, and this is known as industrial origin method. Okay, industrial origin method is the second name given to the value added method. Okay, industrial origin method is the second name which is given to which method? Value added method. Okay, we will discuss it briefly. I'm just giving you a short summary, a short definition of each and every method. So one is the value added method, the second method is known as income method.
Okay, income method is again the second way or second method to calculate the national income. You should know that what is the income method is all about. So to calculate the national income through income method, you have to include, or you can say that it includes the income generated from the factors of production, which includes land, labor, capital and organization. Basically, in income method, we add up all the income which is earned by the normal residents of a country. In short, you don't have to worry much, okay? If you are going to sum up the income which is earned by each and every normal resident of a country, you can get the national income by income method. So basically here we are talking about the factors of production, whatever income which is generated by the factor of production, such as you can say that land, labor, capital and organization. We have to sum up that, okay, and we are able to get the national income with the value added method. Okay, what are the return of factors of production? Please write it down. Please let me know, or please write it down in the comment section that what are the factors of production return. ठीक है, अगर हम factors of production हम इकोनॉमिक में दे रहे हैं, प्रोड्यूसर को दे रहे हैं, तो उसके रिटर्न में हमको क्या मिलता है, इस चीज को आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए. Moving forward, that income method is also known as by two different names. What are they? So it is known as distributed share method or factor payment method. This is also known as distributed share, or you can say that factor payment method. Okay, distributed share method or factor payment method. Okay, this is your income method. This is the definition, or this is the short summary of income method. And the last method which we are going to discuss, which you can say that my most famous, or my most, you can say that my most favorite method, and that is the expenditure method. So when we talk about the expenditure method, so first of all you should know how do we calculate the national income by expenditure method. So this is the simplest way to calculate our national income. Why so? Because you have to sum of all the expenditures, incurred on purchase of final goods and services. That means you have to sum up, you have to add all the expenditures which has been incurred on the purchase of final goods and services, and you can get the national income with the help of expenditure method. Okay, and it is also known as by three different names. What are they? One is consumption method, investment, or disposable income method. Consumption, investment, or disposable income method. So this is again the three names which has been given to the expenditure method. So I hope so that with this flow chart you can easily relate yourself that what are the three different methods, and what are the definition of these three methods, and the second name, or you can say that the other name of these methods. Okay, moving forward, we will firstly
discuss what? We will firstly discuss about the value added method, how it is calculated, how can we calculate our national income with the help of the value added method. Okay, so I'm just leaving the board. Please make this flow chart. Please stop this video and note it down in your notebook or wherever you want to, because this is going to be very useful for you all. पहला स्टार्ट करने जाते हैं। पहला स्टार्ट है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड में जब हम लोग वैल्यू एडेड निकालते हैं तो वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला है हमारा वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हमारा फॉर्मूला है क्या निकालने का? वैल्यू एडेड, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वैल्यू एडेड निकालने का, तो वैल्यू एडेड कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू एडेड इज वी कैन फाइंड आउट बाय डिडक्टिंग द इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे पहले हम ब्रीफ करते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा हमारा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के तरीके देखिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हमको फाइंड करना है तब क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट is equal to value of output is equal to sales plus change in stock, sales plus change in stock, ठीक है। डेल्टा स्टॉक आप बोल सकते हैं या यहाँ पे आप सीधा डेल्टा स्टॉक लिख सकते हैं। तो ये डेल्टा आपको क्या दिखाता है? दिस डेल्टा स्टेट्स योर चेंज इन स्टॉक। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है कि कभी कभी क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिए होंगे, तो सेल्स को कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए सेल्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सेल्स इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट, इनटू प्राइस पर यूनिट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाएगा सेल्स। तो सेल्स कैसे निकालेंगे? सेल्स होगा हमारा यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। और फिर हमको निकालना है चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक आपने पढ़ा भी होगा। अगर चेंज इन स्टॉक हमको निकालना है तो हमको क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक अगर हम कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा चेंज इन स्टॉक। तो बेसिकली हमें निकालना है वैल्यू एडेड। दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन से दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ओके, ये हमारा कोड फॉर्मूला है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? हमको सबसे पहले फाइंड करना होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके, ठीक है। और सेल्स कैसे निकालेंगे? सेल्स हमको मिलेगा यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। अगर नहीं दिया है सेल्स तो ऐसे निकालेंगे, अगर सेल्स दिया है तो हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? तो चेंज इन स्टॉक हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन? यू शुड नो व्हाट इज द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब कि अगर प्रोड्यूसर ने कुछ गुड्स खरीदा है, कुछ रॉ मटेरियल जो खरीदे हैं, तो वो रॉ मटेरियल का जो प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। मतलब जो भी गुड्स जो है किसी अगर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में खरीदा है तो उस मतलब परचेज वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? उस परचेज वैल्यू को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसके बारे में थोड़ा अब हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे आपको पता चल गया वैल्यू एडेड हम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया वैल्यू एडेड, ठीक है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही देखा था कि हमारी जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो मतलब तीनों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मिलके जितना वैल्यू ऐड करती हैं उन सभी वैल्यू ऐड को अगर हम लोग निकाल लें तो हमको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले हमारा फोकस था हमारा फोकस था वैल्यू एडेड निकालने का। तो वैल्यू ऐड तो अब हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं? हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर का जो इनकम होता है या इन तीनों सेक्टर का जो वैल्यू एडिशन होता है उसको हम ऐड कर देंगे तब क्या मिलेगा? और फिर हमको क्या करना पड़ेगा? अब आप देखिए अब हम आ रहे हैं वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपी बिकॉज दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू ऑल।
इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या करना है हमें। समझिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप समझिए वीट फ्लो, ठीक है। जैसे कि गेहूँ, तो गेहूँ का उत्पादन जो है कौन करता है? हु प्रोड्यूसेस द वीट? सो हियर यू कैन से दैट द फार्मर प्रोड्यूसेस द वीट, ओके। सो फार्मर प्रोड्यूसेस द वीट, फार्मर प्रोड्यूसेस wheat. So he produces the wheat and the cost of the wheat is what? 1000 rupees. Okay, so here the farmer produces the wheat which costs rupees 1000, and this wheat is purchased by wheat converted into flour, converted into flour. Now it costs rupees 1300. Now it costs rupees how much? 1300, and this flour is converted into bread. So and the price of this bread is 1500 rupees. Okay, so in this example you can easily state or you can easily observe our three different sectors of the economy. Basically the farmers are from which sector? Farmers are from the primary sector of an economy, and wheat flow converted into the flour, that means where wheat are processed. So wheat are processed in the flour mills. So mills means industry. So industry falls under the which sector? Secondary sector. Okay, so here it comes our secondary sector of an economy. And after the secondary sector, when this flour is again converted into the bread and sold in the market. So when this is sold in the market, or when the product released to the final customer, so this falls under the which sector? Our tertiary sector. Our tertiary sector. So what we have to do now? We have to find out the value added by each of the sector in our economy. Okay. So when we talk about the primary sector, so here we can value added by primary sector. Value added by primary sector. Primary sector will be rupees 1000. Why so? Because farmer has not purchased the wheat from anyone else. Okay, so that is why the value added by the primary sector will be rupees what? Rupees 1000. But when we talk about the value added by secondary sector, so how we will find? For this, see, value of output. What is the value of output? Value of output is rupees 1300. Rupees what? Rupees 1300, and minus intermediate consumption. So as we can see, this wheat is converted into the flour. Okay, so as you can see here, this wheat is converted into the flour. So what is wheat here? Wheat is the intermediate consumption. So we have to deduct wheat here. So rupees 1000 is deducted, and the answer is 300. So 300 rupees is the value added. What? 300 is the rupees which is value added by the secondary sector. Okay, and the third one, value added by tertiary sector. So what tertiary sector has manufactured? Tertiary sector has manufactured the bread which costs rupees 1500, but this tertiary sector has converted the flour into the bread. So what was the price of the flour? The price of the flour was 1300. So what is the value added? So value added comes here 200 rupees. So as you can see here, 1000 was value added by the primary sector in our economy, 300 value added was by the secondary sector in an economy, and 200 was the value added by the tertiary sector of an economy. So from this example, we can calculate the national income of our economy. Okay, so
From here, what we can derive? We can derive the value added by each sector. By each sector means what? By primary sector, by secondary sector, and by tertiary sector. If we sum up all these three values, all these three additional values by each of the sector, so we are using this formula. We are using the value added method. Okay, moving forward with the same formula. So here, what will be the gross value added? Gross value added. Gross value added means the total value added by our economy. What will be? 1000 by primary sector, 300 by secondary sector, and 200 by secondary sector. What is the final national income? The gross value added is 1500. This is still not our फाइनल नेशनल इनकम. अभी भी नेशनल इनकम नहीं आया है, अभी क्या आया है? ग्रॉस वैल्यू एडेड. ठीक है, टोटल वैल्यू एडेड जो है कितना किया है हमारी इकोनॉमी ने मिलके 1500 किया है. अब हम इससे आगे बढ़ते हैं. इसको मैं रब कर देता हूँ. ठीक है, इसको जब मैं रब करूंगा तो आप इस एग्जाम्पल को भी जो है अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए. वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. Okay, so what we are finding here? We are finding here the gross value added. Okay, and this GVA. Okay, जो भी हमको ये gross value added है, आपको एक चीज और भी नोट करना होगा कि gross value added at market price ये इक्वल होता है किसके? gross domestic product at market price. ठीक है, ये आपका जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, तो ये आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो है वो आपका किसके इक्वल होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से. तो यहाँ से हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल दिया. तो अब देखिए, अब जब हमको नेशनल इनकम निकालना होगा तो क्या करेंगे? नेशनल इनकम जब हमको फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडेड को मैं लिख लेता हूँ GVA एंड MP. ठीक है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम को हम लोग कैसे शो करते हैं? तो नेशनल इनकम को अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था नेशनल इनकम इज NNPFC. ठीक है, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है हमारा NNPFC. तो हमारे पास क्या है? GVA एट MP. और GVA एट MP किसके इक्वल है? GDP एट MP के. तो अगर आपको याद है कि लेक्चर 3 में हमने बात करा था कि कैसे GDP MP को हम NNPFC में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको ग्रॉस कन्वर्ट करना होगा नेट में. तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या माइनस करना होगा? डेप्रिसिएशन. फिर क्या करना होगा? हमको जो है इसमें ऐड करना होगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. और फिर देखिए ये मार्केट प्राइस में है. ठीक है, ये GVA MP क्या है? मार्केट प्राइस में है. और हमको क्या चाहिए? फैक्टर कॉस्ट. तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? माइनस करना होगा NIT. अगर हमने इतना कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड. तो वैल्यू एडेड आपका ये है. और नेशनल इनकम हम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम हम निकालते हैं नेशनल इनकम इज इक्वल टू GVA एट MP. GVA at MP minus depreciation plus NFIA minus NIT and we will get NNPFC. ठीक है, और रही बात कि हम लोग जो है ये GVA at MP कैसे फाइंड करते हैं, तो GVA at MP कैसे फाइंड करते हैं इसका मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया कि GVA at MP निकालने के लिए हमको वैल्यू एडेड बाय ईच सेक्टर चाहिए. वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्शियरी सेक्टर. अगर इन तीनों सेक्टर के वैल्यू एडेड को हम लोग प्लस कर दें, जो कि हमने यहाँ पे किया था, तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल होता है? हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के इक्वल होता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. ठीक है, तो GDP एट MP हमारा किसके इक्वल हो गया? GVA एट MP. और GVA एट MP को इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं NNPFC में बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड बाय डिडक्टिंग net indirect taxes. So this is the all about the numerical part of the value added method. Now moving forward, the precautions. Okay, that means what are the things which you have to keep in your mind while estimating the national income with by you can say that value added method. For this you have to note it down.
these two things also. Okay, these two things are also very much important for you from the numerical point of view. Okay, please note it down. अगर हम बात कर रहे हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द वैल्यू वैल्यू मेथड, तो इसमें जो पहला है वो है आपका सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर अवॉइडेड। मतलब जब भी सेकंड हैंड गुड्स का सेल एंड परचेज होगा तो उसको आप अवॉइड करोगे। क्यों? क्योंकि जब गुड्स को पहली बार परचेज किया गया था इकोनॉमी में तो उसकी वैल्यू को काउंट कर लिया गया था, इसलिए जब आपका गुड दूसरी बार जो है सेल या परचेज होगा तो सेकंड हैंड गुड्स के वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका पहली बार में ही हमने काउंट कर लिया, तो अगर हम उसको दूसरी बार काउंट करेंगे तो यहाँ पे डबल काउंटिंग होगा। मतलब एक ही गुड का दाम हम लोग 2 बार जोड़ रहे हैं। क्या गुड 2 बार प्रोड्यूस हुआ? नहीं, गुड तो एक ही बार प्रोड्यूस हुआ ना। तो इसलिए जब मतलब सेकंड हैंड सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स की वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। फिर क्या है हमारा कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। मतलब अगर किसी ब्रोकर की मदद से आपने कोई आपने कोई गुड्स को जो है सेल किया है, बेचा है किसी को, तो यहाँ पे जो ब्रोकर का जो कमीशन होगा उस ब्रोकर के कमीशन को हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि इस ब्रोकर ने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी है, तो सर्विस प्रोवाइड करने में जो उसको कमीशन अर्न हुआ है सो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको जो है कैलकुलेट करेंगे। फिर तीसरा है ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड गुड्स आर टेकन इनटू द कंसीडरेशन। मतलब कि अगर अगर जो ओनर है, ठीक है, वो गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए जो है उसको यूज करता है तो उसको हम लोग काउंट करेंगे। जैसे समझिए ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम है ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना। लेकिन अगर वही ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देती है, पिक एंड ड्रॉप मतलब कि घर से ले आने और घर पहुंचाने की सर्विस अगर वो ट्रांसपोर्ट कंपनी दे रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है उसका जो भी खर्चा आएगा एम्प्लॉयज को पिक करने के लिए और एम्प्लॉयज को ड्रॉप करने के लिए, उसको भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स आर कैलकुलेटेड। सेल्फ कंजम्पशन गुड्स मतलब कि अगर खुद के कंजम्पशन के लिए भी अगर हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, तो उसको हम लोग काउंट करेंगे। जैसे प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स समझिए, ये फार्मर ने क्या किया, 100 क्विंटल ऑफ वीट का मैन्युफैक्चर किया, 50 क्विंटल उसने मार्केट में सेल कर दिया और 50 क्विंटल जो है उसने अपने पास डोमेस्टिक यूज के लिए रखा, अपने हाउस होल्ड यूज के लिए रखा। तो क्या जो डोमेस्टिक यूज के लिए वो 50 क्विंटल रखेगा, क्या हम उसको काउंट नहीं करेंगे? डेफिनेटली हम उसको काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे? क्योंकि अगर ये 50 क्विंटल जो उसने डोमेस्टिक यूज के लिए रखा है, अगर वो मार्केट में जाता तो उसकी कुछ वैल्यू होती, वो वीट जो है वैल्यू जनरेट करता। तो इसलिए जो गुड्स का प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। फिर आपका वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड। यहाँ भी आपका सेम फंडा कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसकी वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हमने इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया तो फाइनल गुड में अगेन उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी, तो यहाँ भी प्रॉब्लम अराइज होगा किसका? डबल काउंटिंग का। समझिए, तो इसीलिए जो है जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैं बात कर रहा हूँ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। फर्नीचर ने क्या किया, वुड परचेज कर लिया और वुड को कन्वर्ट करके जो है फर्नीचर बना दिया। लेकिन कुछ वुड ऐसे हैं कि जो अभी कुछ हुए नहीं, मतलब जो रॉ मटेरियल में पड़े हुए हैं, तो अगर उन लकड़ी के भी दामों को जोड़ दिया जाए, उस वुड की भी वैल्यू को जोड़ दिया जाए और फिर बाद में जब वो वुड कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, फिनिश गुड में, तो फिर से उन्हें जोड़ा जाएगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता। फिर इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज कैलकुलेटेड। मतलब कि अगर कोई हाउस होल्ड किसी बंदे का खुद का घर भी है और अगर वो अपने घर में रह रहा है, अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में है, सेल्फ ओन्ड हाउस में है, तो तब भी मतलब उस हाउस की रेंटल वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रेंटल वैल्यू को क्यों? क्योंकि कोई भी घर है, वो मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी हाउस है, तो उसकी कुछ ना कुछ रेंटल वैल्यू होगी ही होगी। तो इसीलिए जो है वो ओनर ने जो हाउस ऑक्यूपाइड कर रखा है उसकी भी रेंटल वैल्यू को हम लोग अपने नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फिर लास्ट पॉइंट हमारा सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर। सर्विसेज जो होते हैं जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए करी जाती हैं उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, क्या आप जो है एक मदर का लव अपनी फैमिली के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, क्या आप इसकी वैल्यू लगा सकते हो? डेफिनेटली आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एक मदर के लव का जो वैल्यू होता है, जो केयर, जो
हम बोल सकते हैं अटेंशन की जो वैल्यू होती है मतलब उसके चिल्ड्रन की तरफ, तो क्या आप उसके इस अटेंशन, इस लव इस केयर के वैल्यू को क्या आप जो है मतलब वैल्यू में कन्वर्ट कर पाओगे? क्या आप इसकी कीमत लगा सकते हो? डेफिनेटली आप इसकी कीमत नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए जनरली जो सर्विसेज होती है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 7 प्रिकॉशंस हैं कि जो हम वैल्यू एडेड मेथड्स को कैलकुलेट करते वक्त अपने ध्यान में रखते हैं। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके इन प्रिकॉशंस को अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगे कि जो आपको समझ में नहीं आए, सो यू आर फ्री टू आस्क मी। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और उसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इनकम मेथड। ठीक है, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।